وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان پنجاب اسمبلی اشرف علی انصاری، غلام قاصر ہنجرا اور علاؤدین شیخ کی لاہور میں ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، 1/3 آبادی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی۔ اس قدرتی آفت میں پاکستان کا کوئی قصور بھی نہیں۔ بحیثیت قوم متحد ہو کر موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اپنی ذات میں قید عمران خان کو آگے کی سوچ نہیں، اس شخص کو کسی کے غم کا خیال نہ خوشی کا احساس۔ عمران نیازی کو دوسروں کی خوشی اور غم بانٹنا نہ آیا، یہ آدمی 22 کروڑ عوام کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وسائل عمران خان کی ذات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا پی ٹی آئی کی سیاست ایکسپوز ہو چکی، یہ اب کسی احتجاج یا لانگ مارچ کے قابل نہیں رہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام ایک شوشہ ہے، معاشی اصلاحات سیاسی حمایت کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی، اقتصادی ترقی کے لیے برآمدات اور ٹیکس دائرہ کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ پنجاب میں یوریا کی عدم دستیابی کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ عمران خان کی 4 سال کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سازش کا ڈرامہ رچایا گیا۔ عوام تو شاخانہ چور کی حقیقت جان چکے، الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں، اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، وفاقی وزیر سردار ایاز صادق۔ سیاسی مفاد کے لیے معیشت سے متعلق پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ معاشی بدحالی میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہوں گی، مشیر امور کشمیر قمر زمان کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، 2022 میں 214 بے گناہ افراد شہید کیے گئے، 57 افراد کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست قتل کیا گیا، بڑے پیمانے پر بے حرمتی کے واقعات۔ اقلیتیں محفوظ ہیں، نہ ہی نچلی ذات کے ہندو، مقدس مقام سیاحتی مرکز قرار دینے پر جین مذہب کے پیروکار سراپا احتجاج۔ ممبئی، احمد آباد اور دلی میں جین کمیونٹی سڑکوں پر مذہبی مقام کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج۔ کوئی سرکار سمجھنے والے، ہم بھی تو انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ ٹی وی میں دکھاؤ گی آپ لے کے بیٹھ جاؤ گی، کوئی ویڈیو والا نہیں دکھاتا ہے۔ ہم نے جنتا بن کے سرکار کا ساتھ دیا، اب سرکار ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ہم سرکار سے یہ بولیں گے یا تو ہمیں زہر دے دی یا تو کوئی جگہ دے۔ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ یہ اتنے بوڑھے ہیں، یہاں کوئی کتنا بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا، کہاں جائیں گے وہ؟ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی منافرت، اتراکھنڈ کے علاقے ہلدوانی میں مسلمانوں کے 4500 مکانات گرانے کا فیصلہ، 50,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوں گے، حکومت ہم سے زندہ رہنے کا حق نہ چھینے، مظاہرین کا مطالبہ۔ کابل میں فوجی اڈے کے قریب دھماکہ، 10 افراد جاں بحق، 8 زخمی، تاحال کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقوں پر راکٹ اور میزائل حملے، متعدد عمارتیں تباہ، یوکرین کا جوابی کارروائی میں 45 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کو کمزور اور تقسیم کرنے کے لیے یوکرین کو استعمال کیا، روس کا دفاع یقینی بناتے ہوئے ہر مہم جوئی کو ناکام بنائیں گے، صدر ولادیمیر پوٹن۔
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے بڑے پیمانے پر تیاری کا حکم، کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ اور طاقتور میزائلوں کا حصول ضروری ہے۔ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سسٹم بھی تیار کیا جائے گا، کم جونگ ان کا اعلان۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ شائقین کا اسٹیڈیم میں داخلہ مفت ہوگا۔ میچ دیکھیے صبح 10 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ون ڈے سیریز کا آغاز 9 جنوری سے ہوگا۔ کراچی میں 26ویں چیف آف دی نیول سٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ دفاعی چیمپئن شبیر اقبال نے ٹائٹل جیت لیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اور پاکستان کپ فائنل پیر کو سینٹرل پنجاب اور دفاعی چیمپئن بلوچستان کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بلوچستان نے خیبر پختونخوا کو 38 رنز سے ہرا دیا۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سلمہ جی باجی، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔ انکل جی سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔ پر خیال رکھنا کس کا ہے؟ گیس کے بل کا۔ گیس کے مسلسل استعمال سے بل تیسری سلیب پر 3 گنا بڑھنے کے علاوہ چھٹی سلیب پر 18,000 روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے SNGPL کی گیس سیور کون اور ٹائمر ڈیوائس لگوائیے۔ ٹھنڈ لگے تو گرم کپڑے پہنیے۔ SNGPL، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا۔ ویلکم بیک۔ اور بلیٹن میں شامل تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پنجاب اسمبلی کے ارکان چودھری اشرف علی انصاری، ملک غلام قاسم ہنجرا اور علاؤالدین شیخ نے لاہور میں الگ الگ ملاقات کی۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم سے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2022 میں پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بھاری قیمت ادا کی اور 1/3 آبادی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس قدرتی آفت میں پاکستان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ بحیثیت قوم متحد ہو کر موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹیں گے۔ کیا نام آپ کا؟ بہت اچھی بچی ہے۔ کیا نام آپ کا؟ کیا نام ہے؟ رحمت بی بی۔ اور آپ اللہ بی بی ہیں؟ شہیدہ۔ واہ شاباش، پڑھو گے ڈاکٹر بنو گے بڑے ہو کے۔ ہاں پھر مریضوں کا علاج کرو گے انشاءاللہ۔ شاباش۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اپنی ذات میں قید عمران خان کو آگے کی سوچ نہیں، اس شخص کو کسی کے غم کا خیال ہے اور نہ خوشی کا احساس۔ عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ جسے دوسروں کی خوشی اور غم بانٹنا نہ آتا ہو، وہ 22 کروڑ عوام کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام ایک شوشہ ہے اور ایسی حکومت مسائل کا حل نہیں ہے۔ معاشی اصلاحات سیاسی حمایت کے بغیر پائیدار نہیں ہوتیں۔
शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा इक्तिसादी मसाइल की अहम वजह PTI दौर की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात और टैक्स दायराकार में इजाफा नागुज़ीर है। कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत को बहाली की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान पैरों पे तभी खड़ा होगा जब हम सब मिलकर पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा करेंगे, हम सब अपने हिस्से के टैक्स अदा करेंगे और हम पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा करने के लिए मुल्क को एक एक्सपोर्टिंग इकॉनमी बनाएंगे। अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है तो हमें बड़ी डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को उन इस्लाहात की पुष्ट पे ला सकती है जो पाकिस्तान को करना ज़रूरी है? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सियासी हमायत के बगैर नामुमकिन होती हैं। तो इसलिए टेक्नोक्रेट हुकूमत एक चंद उन लोगों का शोशा तो है कि जो हर दौर में ख़ुद को निगरान सेटअप में वज़ीर या ओहदे संभालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप किसी मसले का हल नहीं। अगर टेक्नोक्रेट्स मुल्क को ठीक कर सकते हैं तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत 9 साल तो टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए चलती रही है। उसने क्या किया है? इसी तरह जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी उन्हीं टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत हवाले की हुई थी जिनका आज नाम लिया जा रहा है। तो टेक्नोक्रेट एक मुआवन के तौर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट हुक्मरान के तौर पे कामयाब नहीं हो सकते। पेशावर में जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इमरान खान की ज़ात पर खर्च हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान। APC के एलामिया के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और हुकूमत और उसके वज़रा के करप्शन और माल बटोरने में मसरूफ़ हैं। PTI के दौर में ऐसी करप्शन की गई कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। 9 साल के दौरान सूबे को 900 अरब रुपए का मक़रूज़ बनाया गया। PTI को इसका हिसाब देना पड़ेगा। नाअहलियाँ विफाक से लेकर सूबे तक अब अयां हो चुकी हैं। इन बयानबाजियों से वो अपने नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते, वो एक्सपोज हो चुके हैं। दिन रात बयानात तब्दील करते रहते हैं। माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। महंगाई के हवाले से भी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है कि इस तमाम तर मुश्किलात की असल वजह वो पिछली हुकूमत के 3.5 साल मंसूबे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत में आने से पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि माशी तौर पर मुल्क दलदल में पहुँच चुका है। मौजूदा हुकूमत की बेहतर हिकमती अमली की बदौलत पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। उन्होंने कहा कि PTI की सियासी क़ुव्वत एक्सपोज हो चुकी है, वो अब किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च के काबिल नहीं रहे। जिस तरह के उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मांद पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। APC के लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि PTI की 4 साल की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। इमरान खान की झूठ, इल्ज़ाम तराशी और इदारों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश बेनकाब हो चुकी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है, वो अपनी ज़ात के अलावा किसी का नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा कि माजी में हमारे खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए। इमरान खान के झूठ अवाम के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मदीने की रियासत का दावा करने वाले का असल चेहरा अवाम पहचान चुकी है। लोगों ने कहा था वो आएगा, दूध की नहरें बहेंगी और पता नहीं पाकिस्तान में कितनी तरक्की हो जाएगी, 1 करोड़ नौकरी होगी और 50 लाख घर बनेंगे। ना एक घर बना, ना 1 करोड़ नौकरी, बेरोजगारी जरूर तुम कर गए। 2019 में IMF को बेचा है इमरान खान ने, जो एग्रीमेंट किया, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की हुकूमत को
IMF के एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। जकड़ के रख दिया, जो उन्होंने कहा उसने हाँ कर दी। ये पाकिस्तान की खातिर की तुमने या अमेरिका और IMF को खुश करने की खातिर की? सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे जिससे मुल्क की बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इत्तेहादी उनसे नाराज थे जिसकी वजह से वो अलहदा हुए। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात में बैसाखियां नहीं होंगी, आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। रोज कहता है कि डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये जानबूझ के इमरान न्याजी ने कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों कि जात उसकी है तो सब कुछ है, जात नहीं तो कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए, शायद मुझे भी NRO मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह बचत हो जाएगी। अब बचत नहीं होगी। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को मुश्किलात से निकालने में मसरूफ है। 4 साल तबाही पर काबू पाने में वक्त लगता है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़बान कायरा कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशां है। इंशाअल्लाह हर महाज पर सुरखरू होंगे। लाला मूसा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि मौजूदा माशी मसाइल की वजह PTI दौर की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हुकूमत को अवामी मुश्किलात का एहसास है, भरपूर कोशिश है कि आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाए। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए मईशत से मुतालिक प्रोपेगेंडा काबिल मज़म्मत है। आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि इमरान खान और उनके साथी मनफी प्रोपेगेंडे से मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे हैं, उनके अज़ाइम नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के लिए इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयानात और इल्ज़ाम तराशी से मुल्क को माशी और ख़ारजा महाज पर बहुत नुकसान पहुँचा है। उन्हें अपनी रविश बदलना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ICT लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत बिल वापस किया है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद ये बिल दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। पाकिस्तान और भारत ने मुआहदे के तहत नए साल के आगाज़ पर जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त का तबादला किया है। दोनों मुल्कों ने कैदियों की मालूमात का भी तबादला किया है। पाकिस्तान में 705 भारतीय शहरी कैद हैं, जिनमें 51 शहरी और 654 माहीगीर शामिल हैं। भारत की जानिब से फराहम की गई फहरिस्त के मुताबिक 434 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं, जिनमें 339 शहरी और 95 माहीगीर शामिल हैं। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में माजी की तरह साल 2022 भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, जिसमें एक खातून और 5 कमसिन लड़कों समेत 214 कश्मीरी भारतीय फौजियों की गोलियों का निशाना बने। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबे तहकीक की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक शहीद होने वालों में से 57 को जाली मुकाबलों में और दौरान हिरासत शहीद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों के हाथों इस दौरान 13 खवातीन बेवा और 35 बच्चे यतीम हुए, जबकि भारतीय फोर्सेज ने 44 रिहायशी मकानात और इमारतों को तबाह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में पहले से नजरबंद 4000 हुर्रियत पसंदों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों की फहरिस्त में मजीद 1350 अफराद का इजाफा हुआ, जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले क़वानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने जिला सांबा के कई इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। फौजियों ने जिला राजौरी में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भारतीय चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल का मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी हकूक़ अब ख्वाब बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद खित्ते में एहसास महरूमी में मज़ीद इजाफा हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं सैयद बशीर इंदराबी, जमरुदा हबीब, यास्मीन राजा और ख्वाजा फिरदौस समेत दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 5 जनवरी 1949 की मंजूर शुदा करारदाद पर अमल दरामद पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल इलाक़ाई अमन के लिए नागुज़ीर है। और नाज़रीन, भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनाफ़रत नई बुलंदियों को छू रही है। मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमानों के माशी बायकाट के साथ साथ रियासती सरपरस्ती में अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। रियासत उत्तराखंड के इलाके
हल्द्वानी में इंतजामिया की जानिब से 4,500 मकानात गिराने के फैसले के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद मुस्लिम कम्यूनिटी का कहना है कि हुकूमत उन्हें मुसलमान होने की सज़ा दे रही है। इस इक़दाम से 50,000 से ज़्यादा आबादी बेघर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमसे ज़िंदा रहने का हक़ ना छीने। या अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले। या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। इनका चका करके घर को बनाया मेरे मौला, इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। या अल्लाह दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। कोई सरकार समझने वाले, हम भी तो इंसान है, कोई जानवर नहीं है, हम क्या जाएं। टीवी में दिखाओगी आप कि आप लेके बैठ जाओगी, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता है। हमने जनता बन के सरकार का साथ दिया, अब सरकार हमें क्यों नहीं देख रही। हम सरकार से ये बोलेंगे या तो हमें जहर देती या तो कोई जगह देती। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे वो। भारत में जैन मज़हब के मुक़द्दस मकाम को सियाहती मरकज़ करार देने के मामले पर मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली के इंडिया गेट पर लाखों जैन पैरोकार एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। झारखंड की हुकूमत ने तीरथ समेत शिखर जी को सियाहती मुकाम का दर्जा देने का ऐलान किया था। 26 दिसंबर से जारी एहतजाज में यकायक शिद्दत आ गई है। मुंबई में 5 लाख जैन पैरोकार मजहबी मकाम की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के बायस दिल्ली, झारखंड और मुंबई में मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। हिंदू पंडितों ने साल के पहले दिन एहतजाज को हिंदुस्तान के लिए बदशगुनी करार दिया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस हुकूमत मजहबी आज़ादी पर हमला कर रही है। एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। प्रेस फ्रीडम अवार्ड हासिल करने वाली भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने अमेरिका में फाशिस्ट मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय सहाफ़ी ने मोदी को गुजरात का कसाब और हज़ारों मुसलमानों का कातिल करार देकर भारतीय वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। अमेरिका में तकरीब से खिताब में राना अयूब ने आज़ादी इजहार के बदतरीन हालात और जमहूरियत के ढोंग को बेनकाब करते हुए G20 की सरबराही भारत को मिलना इंतहाई तशवीशनाक और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने भारत में जारी मज़ालिम और बदतरीन इंसानी हकूक़ और मीडिया की पाबंदियों के खिलाफ मगरबी मुल्कों की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। राना अयूब ने कहा कि मोदी जैसे शख्स का भारतीय वज़ीर आज़म होना न सिर्फ भारतीय अक़लियतों बल्कि इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। भारतीय फाशिस्ट हुक्मरानों के झूठ और सब अच्छा है क्या ढोल फट चुका और RSS की हकीकत भी सामने आ चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया है। सियासी क़यादत को रवादारी और मकालमे के उसूलों को अपनाते हुए हम आहंगी और मफाहमत को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में हमवतनों की भरपूर मदद की है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इदारे की जानिब से किए गए इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही अपनी सीटों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 200 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शेखुपुरा में तरक्याती मंसूबों की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी ने ज़ाती इक़्तिदार के लिए मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया। सादिक और अमीन होने के दावेदार की हकीकत अयां हो चुकी है। सूबे में हुकूमत किसकी है? सूबे में हुकूमत तो आज भी 1.5 माह सिर्फ आई है मुस्लिम लीग के पास, मगर 4 सालों में तो सूबे की हुकूमत उन्हीं के पास है। फिर महंगाई कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? फिर आटे पे सब्सिडी देना किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप चीनी, दाल, चावल, मैं कहता हूँ हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इसके किराए कम करना, मुफ्त अद्वियात देना, एजुकेशन को सस्ता करना सूबों का काम है या मरकज का काम है? आज गुजरात में पैसा लग रहा है अरबों रुपया, मंडी बहाउद्दीन में अरबों रुपया लग रहा है
اور اپنے 2-3 ضلعوں میں جہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہاں جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ دے دیتے ادویات پہ، آٹے پہ، چینی پہ، چاول پہ، تو لوگوں کو کم از کم آج جو ریٹ ہیں اس کا چوتھا حصہ دینا پڑتا۔ کراچی میں عوامی اجتماع سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ عمران خان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ اس شخص نے بہتان تراشی اور دشنام ترازی سے معاشرے کو تقسیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات پس پردہ ڈالتے ہوئے پاکستان کو بچانے کے لیے اتحادی جماعتوں نے حکومت سنبھالی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف پاکستان کی ترقی کی علامت ہیں۔ ان کے دور میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا اور بحران ختم ہوئے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان کے جھوٹ کا دور ختم ہو گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بین الصوبائی ہم آہنگی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادی حکومت کی کوششوں سے ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو اونرشپ دی ہے۔ شہر قائد کا میئر وہی ہوگا جسے منتخب کریں گے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں جہانگیر علی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے عوام کی خدمت کے لیے متعدد منصوبے نہ صرف شروع کیے بلکہ ہماری حکومت میں ہی اس شہر کے دیرینہ مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں شہر کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بتا دے کہ 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی تھی، کراچی نہیں پورے پاکستان میں ایک منصوبہ بتا دے۔ میں نے پرسوں میں جانا تھا مجھے، لیکن میں نہیں جا سکا۔ 330 میگا واٹ ایڈ کیا ہم نے نیشنل گریڈ میں۔ ذرا ایک منصوبہ، یہ سندھ حکومت کا کام ہے سارا۔ ذرا بتائیں پچھلے 3.5 سال میں حکومت پاکستان میں کیا کیا ہے؟ کہ وہ شخص جس کی میں بات کروں شاید اسی کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، ابھی یہاں سے وہ جیت کے گیا تھا۔ آیا یا نہیں آیا، لیکن ایک پتھر ایک اینٹ لگائی ادھر۔ کہ جتنے پروجیکٹس پچھلے 5-6 سالوں میں کراچی میں ہوئے ہیں، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی امن و امان لائی ہے۔ ایک اور سوال پر سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ مکانات کی تعمیر کا کام 1 ہفتے کے اندر شروع کر دیا جائے اور ہم تباہ شدہ مکان کے مالک کو 3 لاکھ روپے دینے جا رہے ہیں تاکہ وہ خود تعمیر کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے، BRT ریڈ لائن اور گلستان جوہر میں فلائی اوور اور انڈر پاس کی جاری تعمیرات، EBM اور شاہ فیصل انٹرچینج کے جاری زمینی کام، ایکسپریس وے KRD 15 چیک پوسٹ نمبر 6 ملیر کینٹ میں BRT ریڈ لائن انفراسٹرکچر کے جاری ترقیاتی کام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزراء ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان بھی موجود تھے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے مطالبہ کیا ہے کہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ازسر نو حلقہ بندیاں کی جائیں۔ کراچی میں رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ MQM بلدیاتی انتخابات کے لیے مکمل تیار ہے، چاہتے ہیں انتخابی عمل مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور شفاف ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے رکن قومی اسمبلی ملک عمر اسلم خان نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام آدمی کی فلاح عزیز ہے۔ نئی قانون سازی کا مقصد گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے۔ عوام کے مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی عدم توجہ کے باعث صورتحال سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ کئی علاقوں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 سے بڑھ کر 648 روپے کا ہو گیا ہے۔ سانگلہ ہل سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد انور انصاری۔ پنجاب بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی آٹے کی قلت کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سانگلہ ہل اور اس کے نواحی علاقوں میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 490 روپے سے بڑھ کر 650 روپے ہو چکی ہے۔
15 किलो आटे का थैला 1,800 रुपये और चक्की का आटा 5,000 रुपये मन में भी दस्तयाब नहीं है। हाथों में पैसे लिए लंबी कतारों में खड़े शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। सुबह ते आके बेटा लगे ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 रुपए किलो आटा है, वक्त नहीं पास ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। सुबह से आए हैं हम आटा लेने के लिए, लाइनों में लगे हैं और आटा नहीं मिल रहा है इधर से। ये हमने हाथ पैसे पकड़े हैं हाथ में। सुबह की लाइन तक खलोते हैं, मजदूरी भी करनी है, सब कुछ करना है। आटा बहुत महंगा नाले मिलता नहीं पिया है। तहसील भर में सस्ते आटे के 8 खरीदारी पॉइंट्स पर 10 किलोग्राम के 100 से 110 थैले हफ्ता में 5 दिन सप्लाई किए जा रहे हैं, जो 3 लाख की आबादी के लिए नाकाफी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब और इंतजामिया शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिंध में सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और इमदादी अशिया फराहम की जा रही हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में सर्दी के पेश नज़र सूरत हाल का इदराक करते हुए बिरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में कौंसल जनरल बखीत अतीक अल-उमैती ने बज़ाते खुद 10 रोज़ा इमदादी मुहिम का आगाज़ किया, जबकि इस मौके पर वो खुद मुतासरा इलाकों में गए और न सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के हवाले से आगाही हासिल की, बल्कि इस मौके पर गर्म कपड़े, कंबल, जैकेट्स और दीगर अशिया तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौके पर अतीक अल-उमैती ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द को समझते हैं, जबकि इनके मसाइल की दाद रसी के लिए हमा वक्त कोशिशें कर रहे हैं। आज हम लोग खैरपुर में सिंध में बच्चों का और बड़ों का जैकेट और कंबल तकसीम कर रहा हैं, जो सर्दियाँ चल रही है, और ये हिलाल अहमर का तरफ से, यूई का तरफ से, और सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब में ये 3 जगहों में तकसीम हो रहा है। माशाल्लाह जो बच्चों का खुशी है, इनको ज़ाहिर हम लोग को भी खुशी होता है। इनको इस मौसम में और इस सर्दी में इनको जैकेट और कंबल मिलने का, इनकी खुशी का चेहरे से पता चलता है। कौंसल जनरल ने कहा कि वो इस दौरे के बाद इमदादी खिदमात का दायरा कार बढ़ाने के लिए बराह रास्त कोशिशें करेंगे, जबकि उनकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों की भरपूर मदद की जाए। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और नाज़रीन, अफरा तफरी के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिराग की मानिंद रोशनी फैला रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक टीम है, जिन्होंने 2005 के ज़लज़ले के बाद एक ख़ैमे में एक मेडिकल कैंप की बुनियाद रखी, जो अब जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता एक हस्पताल बन चुका है, जहां हर रोज़ सैकड़ों मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाता है। तफसील जानेंगे अदील अहमद खान से। मुजफ्फराबाद के नवाई इलाके टंडाली में अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के दौरान कायम मेडिकल कैंप में बरतानिया से आई पाकिस्तानी रज़ाकार डॉक्टर्स की टीम ने इस इलाके में तिब्बी सहूलियात की कमी को शिद्दत से महसूस करते हुए यहाँ रफ़ाई बुनियादों पर जदीद हस्पताल के क़याम के बारे में सोचना शुरू किया। इरादे पुख्ता और नीयत साफ थी, लिहाजा मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी नयाद बरतानवी डॉक्टर सैयद यूसुफ इफ्तिखार की सरबराही में एक खेमे से जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता हस्पताल के क़याम का ख्वाब महज 6 बरस में ही शर्मिंदा ताबीर हो गया। जब ज़लज़ला आया था तो हमारी टीम इंग्लैंड से बालाकोट और मुजफ्फराबाद काम करने के लिए आई थी, और फिर जब हम यहाँ से वापस गए तो हमने एक अदारा जो है चैरिटी का रिकॉग्नाइज़ कराया इंग्लैंड में। ये फुली रजिस्टर्ड चैरिटी है और वाहिद चैरिटी है जो कि 0% एडमिनिस्ट्रेशन चैरिटी है। इसका मतलब ये है कि मैं हमारे जो कि चेयरमैन हूँ इस अदारे का, तो 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कोई भी एक भी पैसा चंदे के से नहीं लेता है, कोई किसी की तनख्वाह नहीं है। जब जो सफ़र स्टार्ट हुआ 2 डॉक्टर्स और 2-3 नर्सेज से, आज माशाल्लाह 70+ स्टाफ मेंबर्स हैं इसके, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं। तमाम गरीब लोग, तमाम विडोड जो फैमिलीज़ होती हैं, तमाम ऑर्फन बच्चे हैं, उनका इलाज हो सके और बिल्कुल मुफ्त हो सके, उनसे पैसे ना लिए जाएँ और एक डिग्निफाइड मैनर में हो सके। इस रफ़ाई अस्पताल में जनरल OPD के साथ साथ सर्जरी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट्री और गायनी की जदीद तरीन सहूलियात के साथ साथ लागर और कमज़ोर बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए खसूसी न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले तमाम मरीजों बिलखसूस मुस्तहिक अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। बेहतरीन मेडिकल मतलब अस्पताल है, अच्छी दवाई देती है। मैं 1 साल तो दवाई लेना थे। यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा तरबियती सेशंस का इनेकाद किया जाता है। ज़रूरत समर की है कि हुकूमती सतह पर ऐसे अदारों की हौसला अफजाई की जाए। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, टंडाली,
ज़िला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नया साल, नई उम्मीदें, नए अज़्म। शहरियों ने इस तवक्को का इजहार किया है कि 2023 में वतन अजीज़ तमाम मसाइल पर काबू पाने में कामयाब होगा और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मज़ीद अहवाल जानिए आसिम रिजवान की इस रिपोर्ट में। नए साल के हवाले से तवक्को दी है कि सियासतदान अपने रवैये पर नज़रसानी करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। मैंने गेम्स में हिस्सा लेना है और फर्स्ट आना है। नए साल का सूरज तुलू हुआ और आवाम की तवक्कुआत को भी नई जिला और तमाज़त मिली। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल हैं और नौनिहालान मुस्तकबिल के मेमार। नए साल में उनके मकासद, उम्मीदों और ख्वाहिशात की रुदात उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे बड़े होकर पायलट बनना है। मैं चाहता हूँ कि नए साल में गेम में हिस्सा लूँ और पहली पोजीशन में आऊँ। अपनी सोच को बदले, सोच बदलेगी तो साल बदलेगा। साल तो कई बदले लेकिन लोग नहीं बदले, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं बदलती। पिछले साल जो है वो काफ़ी माशी बहरान भी आया है, सैलाब की वजह से कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि नेक्स्ट साल में इंशाल्लाह हमारा कारोबार बेहतर होगा। पिछले साल का तजर्बा तो बड़ा तलख है। आइंदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करेगा खुशियाँ लेके आवे। सियासतदान सोचते ना खुलें, आवाम दा सोचन। अच्छे की उम्मीद रखना और उम्मीद का दामन थामे रखना ही जिंदा दिली और कुछ कर गुजरने वालों का शेवा है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरज की किरणें सबसे पहले शकरगढ़ के सरहदी गांव बड़ा भाई मसरूर में दाखिल होकर दिन का उजाला फैलाती हैं। पाकिस्तान के मयारी वक्त के तयन में भी इसी मकाम का हवाला दिया जाता है जो 1 अक्टूबर 1951 में नाफिज किया गया। तफसील जानिए इरफान खालिद की इस रिपोर्ट में। चढ़ते सूरज की सरजमीन शकरगढ़ पर साल 9 2023 का सूरज शुरू हो चुका है। साल 9 के पहले दिन के सूरज की किरणें सरहदी मकाम बड़ा भाई मसरूर से दाखिल होकर दिन का उजाला फैलाती हैं। सरजमीन शकरगढ़ मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा खित्ता है जहां से पाकिस्तान के म्यारी वक्त का तयन किया गया जो 1 अक्टूबर 1951 को नाफज हुआ। मशहूर मौर्रिख प्रोफेसर मोहम्मद अनवर महमूद रियाजीदान ने इस बात की तहकीक की कि पाकिस्तान में जो सूरज की सबसे पहले किरणें जो हैं वो हिंदुस्तान के बाद सबसे पहले इसी गांव बड़ा भाई मसरूर में पड़ती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से लिया जाता है। नया साल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आएगा और इस मौके पर हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दाज़मा हैं। हम दुआगो हैं कि वो तमाम के तमाम अनासर जो कि इस मुल्क के पाकिस्तान को गैर इस्तेहकाम करने की साजिश कर रहे हैं उनकी साजिशें नाकाम हो। आपस में हमारी सियासी रंजिशें ख़त्म कर पाकिस्तान को माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क बनाने का ये साल है। मोहम्मद इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन, शकरगढ़। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कई शहरों में नए साल के आगाज़ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आतिशबाजी के इस मुजाहरे की तफसील से आपको आगाह कर रहे हैं अली गुल इस रिपोर्ट में। साल 9 के आगाज़ के साथ मुल्क भर में आतिशबाजी और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए और न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया। कराची में साहिल समंदर समेत मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों ने आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इसके अलावा लाहौर, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में मनचले सड़कों पर निकल आए और फैमिलीज ने भी अपने अपने तरीके से नए साल की खुशियाँ मनाई। मलका कोसार में भी लोगों ने साल 9 को खुशामदीद कहा। इस मौके पर GPO चौक और माल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद ने जश्न मनाया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के बाइस नए साल की खुशियां शहर की मुख्तलिफ निजी हाउसिंग सोसाइटीज तक महदूद रहीं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। साल 9 का आगाज न्यूजीलैंड के स्काई टावर से हुआ जहां आसमान रंगो नूर से नहा गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी नए साल के आगाज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लोगों की बड़ी तादाद नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सड़कों पर मौजूद थी। दुबई का बुर्जुल खलीफा भी साल 9 के आगाज पर रंगो नूर में नहा गया। रंगारंग आतिशबाजी के दौरान आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। रूस, जापान और कोरिया में भी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया, जबकि चीन, फिलिपाइन और सिंगापुर में भी आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा।
इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दुनिया भर में नए साल की खुशियों को मुख्तलिफ तरीकों से मनाया गया। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि IG जेल खानाजात खैबर पख्तूनख्वा सआदत हसन ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान का दौरा किया। उन्होंने जेल की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया और मुख्तलिफ नए बैरक्स का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खतरनाक कैदियों की तादाद सेंट्रल जेल में बहुत कम है। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस जवानों पर फख्र है। अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने पेशावर से कराची तक चलने वाली तेज़ तरीन ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस को झेली इदारे प्रॉक्स के हवाले किया है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे नासिर खलीली ने ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। रहमान बाबा एक्सप्रेस में मुसाफिरों को वाईफाई समेत बेहतरीन और जदीद सहूलियात फराहम होंगी और ये 23 घंटे में पेशावर से कराची पहुँचेगी। ट्रेन में मयारी खाने और पर्दे का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। वज़ारत इत्तलात की तरफ से कोयटा में दस्तावेजी फिल्म की तैयारी से मुतालिक 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद। लैंडस्केप, सोशल इश्यूज या पब्लिक मसाइल, डॉक्यूमेंट्रीज की तैयारी में कौन कौन से गैजेट्स और एप्स मुआविन हो सकती हैं। वर्कशॉप में कैमरा वर्क, ड्रोन, ऑस्मो और गिम्बल के साथ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल बताया गया। जो ट्रेनिंग का हमारे मकसद था ये था कि सहाफ़ियों में और जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको जो रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे मीडिया के, उस हवाले से गाइड किया जाए। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की जो बेसिकली टेक्निक्स हैं, शॉर्ट सिलेक्शन और स्पेशली जो प्रोडक्शन स्टेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेजेस, उसके हवाले से जो है वो आगाही फराहम करना था। यंग जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करने वालों ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से वर्कशॉप को इंतहाई मुफीद करार दिया। डॉक्यूमेंट्री बेसिकली होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है, जो अमूमन जो है एकेडमी लेवल पे किसी को नहीं बताई जाती। ब्लॉगिंग का शौक़ था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे जाके मैं अपना ये शौक़ पूरा कर सकूँ। तो थैंक यू कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें फराहम किया कि रिसर्च, स्टोरी बोर्ड, वॉइस ओवर, लाइटिंग और बैकग्राउंड साउंड समेत डॉक्यूमेंट्रीज में मुआविन टेक्निक्स को भी उजागर किया गया। वर्कशॉप यंग जर्नलिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के हवाले से इंतहाई मुआविन साबित होगी। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, सर्द मौसम के भी अपने ही मज़े होते हैं। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म पकवानों से लुत्फानंदोज़ होने के लिए बाज़ारों और रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से फ़हद शब्बीर खटक। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फ पड़ने और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। ताहम सर्द मौसम की सर्द शामों में गर्म खुराकों से लुत्फ अंदोज होने के लिए शाम ढलती ही बाजारों में शदीद सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए सर्दी में इजाफे से पेशावर के बासियों ने गर्म पकवानों का रुख कर दिया। शाम ढलती ही सूप, यखनी, कबाब, मछली फरोशों पर रश बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस ठंड में इजाफे होने से शहरियों ने गर्म ग़िज़ाओं से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाजारों का रुख किया। किसी ने गर्म दूध में थोड़ी सी चीनी और ताज़ा जलेबियाँ डालकर सर्दी की शिद्दत कम की, तो किसी ने गर्मा गर्म सूप और अंडे का सहारा लिया। सर्दी बढ़ने के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हुआ। खुराक की दुकानों और होटलों पर रश आम मामूल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी में इजाफे से गर्म खुराक की मांग भी बढ़ जाती है। मौसम में इजाफा होने की वजह से सेल में काफी फर्क आ जाता है। अगर पहले सेल 50% होती है तो अब 100% पे चली जाती है। मौसम में तब्दीली हुई है तो अभी हमारा काम अच्छा है। तकरीबन हम गर्मियों में भी लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में इस सूप की ज़्यादा डिमांड होती है, तो यहाँ पर सूप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग घर भी लेकर जाते हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दी के मौसम में अपने दोस्तों के साथ गर्म खुराक के खाने का मजा ही कुछ और है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है बल्कि एक अच्छी खासी सैर व तफरीह भी हो जाता है। चावल का मौसम जो है अचानक उसमें तब्दीली आ गई है और हलवा खाने का मूड भी हमारा जो है ऊपर आ गया है, तो हमने कहा कि जरा आ जाए और थोड़ा हलवा भी हम ले सकते, फैमिली के साथ एंजॉय भी करें। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए मुख्तलिफ खानों का यानी मछली और टिक्का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। शहरी बाजार में अपने दोस्तों के हमरा खुद भी गर्म पकवानों से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने घर वालों को भी नहीं भूलते। शबीर, PTV न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, सेहतमंद ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सरगर्मियों पर मुनहसर है। इन सरगर्मियों के लिए मागला हिल्स की ट्रेल्स लोगों के लिए तफरीह और पुरफज़ा माहौल फराहम करने का ज़रिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद उस्मान।
پرندوں کی چہکار، تازہ ہوا، پرفضا ماحول لوگوں کو مرگلہ کی پہاڑیوں میں بنائی گئی پگڈنڈیوں کی طرف کھینچتی ہیں۔ سال کے پہلے روز ٹریل 5 پر شہریوں کی بڑی تعداد نے ٹریکنگ کی۔ ہفتہ وار چھٹی کو شہریوں نے اپنی فیملیز کے ہمراہ ٹریل 5 پر ہائکنگ کر کے گزارا۔ ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں۔ آج کے دور کی اس سے بہتر ہیلدی ایکٹیویٹی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری ہے، اور ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تھینک یو۔ اور ہائکنگ کرنے آئے تھے، ابھی ہم جنگل میں ٹریل 5 میں بہت تعریفیں سنی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں کہ بہت اچھا، اور واٹر فال وغیرہ دیکھنے آئے تھے۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے، بہت اچھا لگا ہمیں یہاں پہ آ کے۔ ٹریل کے قدرتی مناظر اور ندی شہریوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتی رہی۔ کمپلیٹ پیکج ہے، یہاں پر آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، مینٹلی آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، قدرت کے پاس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فل باڈی ایکسرسائز ہے۔ ہائکنگ از ویری گڈ یار، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے، اس سے جو آپ کا اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے نا، ان میچڈ۔ ہائکنگ جو ہے یہ ہیلتھ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ ایسا ایٹماسفیئر آپ کو کہیں بھی کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ ٹریل 5 بھائی انہوں نے ٹریک بہت اچھا بنایا، ہمیں بہت مزہ آیا ہے۔ شہریوں نے ہائکنگ کے ٹریک کو صحت مندانہ سرگرمی قرار دیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ورزش کرنے سے نہ صرف انسانی جسم میں چستی اور مضبوطی آتی ہے، بلکہ اس کو معمول بنانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقہ جات اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ خطہ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -15، استور -11، سکردو، کالام، گوپس -8، کلات، زیارت، ہنزا -6، پارا چنار، بگروٹ -5 اور دیر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 1، لاہور 8، کراچی 11، پشاور 0، کوئٹہ -3، گلگت -3، مظفر آباد 2، مری -1، دیر -4، چترال -3، راولاکوٹ -3، مالم جبہ -1، فیصل آباد 6، ملتان 6 اور سرگودا میں بھی 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ افغان دارالحکومت کابل میں فوجی اڈے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ہوا۔ اس سے قبل ترجمان افغان وزارت داخلہ عبدالنافع ٹکور نے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے دھماکے کی تصدیق کی اور بتایا کہ دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تاحال کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ نئے سال کے آغاز پر روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقوں پر راکٹ اور میزائل فائر کیے گئے، جن میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، جن میں 45 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی حملوں میں یوکرین کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم نے داغے گئے 12 میزائلوں کو بھی فضا میں تباہ کر دیا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کو شکست دیں گے اور یہ کامیابی معجزوں سے نہیں بلکہ غیر ملکی شراکت داروں کی مدد سے ممکن ہوگی۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ روس کو جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ملکوں نے روس کو کمزور اور تقسیم کرنے کے لیے یوکرین کا استعمال کیا۔ ہم اپنے ملک کا دفاع یقینی بناتے ہوئے ہر مہم جوئی کو ناکام بنائیں گے۔ قوم سے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ یوکرین میں خصوصی آپریشن میں مصروف فوجیوں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ثبوت مغربی ملکوں کے ایجنڈے کو ناکام بناتے ہوئے اپنی سرزمین کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دوسرے میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے کرکٹرز نے بھرپور پریکٹس کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں شائقین کا داخلہ مفت رکھا ہے۔ شائقین اسٹیڈیم کے کسی بھی انکلوجر سے کھیل کا براہ راست لطف اٹھا سکیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بغیر نتیجے کا ختم ہوا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا آغاز 9 جنوری سے ہوگا۔ عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد افریدی کی صدارت میں سلیکشن کمیٹی اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، ہیڈ کوچ ثقلان مشتاق کے درمیان اجلاس ہوا، جس میں قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سمیت مختلف امور زیر بحث آئے۔ اجلاس کے بعد ویڈیو بریفنگ میں سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد افریدی نے کہا کہ مختصر سے وقت میں چیزیں بہتر کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی کرکٹ ہوگی اور نتیجے سامنے آئیں گے تو شائقین کا بھی جوش و خروش بڑھے گا اور کرکٹ کو فروغ ملے گا۔ ہمارے پلانز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی تگڑی پازیٹیو کرکٹ ہونی چاہیے اور پچز بھی اسی حساب سے ہی بننی چاہیے جس پہ ایکسائٹمنٹ ہو، لوگ میچز دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں، کراؤڈ آ سکے گراؤنڈ میں، اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں کھیلنا چاہیے، اور جس کا رسپانس بابر اور ہیڈ کوچ ثقلان مشتاق کی طرف سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہا، اور انشاءاللہ اسی طرح مل کے کرکٹ کی بہتری کے لیے ہم لوگ مل کے کام کرتے رہیں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ لیوک رونکی نے کہا ہے کہ پہلا میچ بغیر کسی نتیجے کا ختم ہونے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیوی بیٹنگ کوچ نے کہا کہ کنڈیشنز دونوں ٹیموں کے لیے ایک جیسی ہیں، پچ پر نمی ہے مگر دونوں ٹیموں کے لیے ایک ہی طرح کے آپشنز ہیں۔ لیوک رونکی نے کہا کہ سپنرز کو زیادہ کھلائیں یا فاسٹ بولرز کو، اس کا فیصلہ وقت پر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ میں بیٹنگ کے لحاظ سے دونوں ٹیموں نے اچھا سکور کیا۔ مہمان ٹیم کے کوچ نے کہا کہ پاکستان میں اچھا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اچھی کرکٹ بھی ہو رہی ہے۔ 26ویں چیف آف دی نیول سٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ دفاعی چیمپئن شبیر اقبال نے اپنے نام کر لی ہے۔ ایونٹ کے آخری روز شاندار کھیل کے بعد محمد شبیر اقبال نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ کراچی گولف کلب میں اختتامی تقریب ہوئی جس میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے۔ سربراہ پاک بحریہ نے اس موقع پر کہا کہ پاک بحریہ ملک میں کھیلوں کے ذریعے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ تقریب کے اختتام پر نیول چیف نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دفاعی چیمپئن بلوچستان نے خیبر پختونخوا کو 38 رن سے شکست دے کر پاکستان کپ کے فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ فاتح ٹیم پیر کو فائنل میں سینٹرل پنجاب کے مد مقابل ہوگی۔ کراچی میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں کے پی کی پوری ٹیم 302 رنز کے تعاقب میں 48ویں اوور کی پہلی گیند پر 264 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عادل امین، محمد حارث اور صاحبزادہ فرحان کی نصف سنچریاں رائے گاں گئیں۔ اماد بٹ نے 52 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ خرم شہزاد اور محمد جنید نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ کراچی میں جاری قومی سنوکر چیمپئن شپ کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ شان نعمت اور اویس اللہ نے پہلی دفعہ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ شان نعمت نے بلوچستان کے چیمپئن عادل عبدالجبار کو کوارٹر فائنل میں 5-1 سے ہرا دیا۔ اویس اللہ نے محمد نسیم کو 3 کے مقابلے میں 5 فریم سے شکست دی۔ دیگر کوارٹر فائنلز میں شاہد آفتاب نے آکاش رفیق جبکہ سلطان محمد نے سربلند خان کو ہرا دیا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مناظر حسین، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔